Principles for curriculum design, challenge, and enjoyment. Breadth, progression, depth. Breadth, progression, depth, coherence, relevance, and personalization and choice. So इतने सारे principles हम लोग देखने वाले. Let us start with principle of curriculum development. Okay. ये पैराग्राफ भी अपना हो गया था ना? Yes, via challenge and enjoyment. हाँ, the curriculum should include Points are science. remaining. या करिकुलम में क्या क्या होना चाहिए, मैथमेटिक्स, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, कोहेरेंस, ये सब हम लोग का चल रहा था पॉइंट्स, बट हम लोगों ने ये डीप में नहीं देखा था. यस, ये डायग्राम हमारा चल रहा था. सो बेसिकली ना, ये जो है ना प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डिजाइन एंड डेवलपमेंट, देयर आर मेनी अदर प्रिंसिपल्स अपार्ट फ्रॉम व्हाट दे हैव गिवन अबाउट हियर. Relevance, progression. They have other principles also, like principle of child-centeredness, then is all extracurricular activities and all, वो सब भी है. So वो भी मैं ना आज कल के सेशन में ना, कल भी करेंगे हम लोग. Tomorrow also I will be free by 7 o'clock. So definitely we'll do it. और भी प्रिंसिपल्स है जो हम कल सीखेंगे. हम लोग ये आज टेक्स्ट बुक का देख लेते, but other extra principles which we will learn tomorrow, that we can keep in mind while writing the exam. So let us start from test learners limit and exciting to learn. So चलो, कौन पढ़ रहा है? सलमा कौन पढ़ेगा? दर्शना मैम, नजमा मैम, कौन पढ़ेगा? शबनम मैडम हमेशा पढ़ते हैं. At all stages, चलो पढ़ो पढ़ो जल्दी. लर्नर्स के लिमिट और एक्साइटिंग टू लर्न कितना है, उसको हमें क्या करना है? टेस्ट करना है. कम ऑन, रीड दिस पैराग्राफ, विल अंडरस्टैंड. एकदम इजी है. शबनम मैडम पढ़ो आप ही, चलो. Okay. Challenge and enjoyment. The first point is test learners' limits and exciting to learn. At all stages, learners of all aptitudes and abilities should experience an appropriate level of challenge to enable each individual to achieve his or her potential. The practical nature of the challenges motivates all young people, including those who may not be as academically strong, to show their abilities and to learn by offering new interactive routes into familiar subject areas. Each challenge should be cross-curricular, and the range of hard and soft skills involved must be designed to give young people more confidence in both an academic context and in their ability to make a positive contribution while working effectively with others. Children and young people should find their learning challenging, engaging, and motivating. The curriculum should encourage high aspirations and ambitions for all. They should be active in their learning and have opportunities to develop and demonstrate. There should be support to enable children and young people to sustain their efforts. ओके. सो कैसे होना चाहिए? लर्नर्स के लिमिट्स और एक्साइटिंग टू लर्न, ये मेजरेबल होना चाहिए. सो वी ऑल आर टीचर्स, सो वी नो एट ऑल स्टेजेस अलग अलग एप्टीट्यूड रहता है, अलग अलग एबिलिटीज रहती है ऑफ एवरी लर्नर्स. ओके. एंड दे एक्सपीरियंस अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ चैलेंजेस. सो केजी के बच्चों को डिफरेंट लेवल है, 10th के बच्चों को डिफरेंट लेवल है. सो हाउ शुड बी द करिकुलम? सो करिकुलम का जो प्रिंसिपल है, it should enable each individual to achieve his potential. So this is a first principle we will explain, that the curriculum should be such that every child should get an opportunity as per his abilities, as per his aptitude, as per his level of challenges, accepting the challenges. He should get, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों के ऊपर बर्डन होना चाहिए, एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए. दूसरा है, the practical nature of the challenge motivates all young people, including those who may not
may not be as academically strong to show their abilities. मतलब बच्चे को ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि मेरे को कुछ नहीं आ रहा है पढ़ाई में, एग्जाम में, तो उसको इंफीरियर नहीं लगना चाहिए. सो उसको मोटिवेशन लगना चाहिए, इवन दो ही इज नॉट डूइंग गुड इन एकेडमिक्स, बट बैलेंस होना चाहिए करिकुलम, सो दैट द चाइल्ड शुड फील गुड. सो कुछ उसको इंटरेक्टिव सेशंस या थ्रू न्यू वे ऑफ लर्निंग या कुछ अदर सब्जेक्ट एरिया शुड बी इन्वॉल्व इन द करिकुलम, so that the child should feel excitement to learn. Otherwise he will get bored, he will get tired. ऐसे कुछ तो होना चाहिए करिकुलम में कि other than academics the child should feel happy to do it, excited to do it. ये है दूसरा वाला चीज. तीसरा है ईच चैलेंज. इसी में लर्नर्स के ही एक्साइटमेंट में जो भी चैलेंज रहेगा वो क्रॉस करिकुलर एंड द रेंज ऑफ द हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल. से कुछ बच्चे हार्ड स्किल. व्हाट इज हार्ड स्किल बाय द वे? व्हाट इज सॉफ्ट स्किल? डू यू नो व्हाट इज सॉफ्ट स्किल एंड व्हाट इज हार्ड स्किल? नो मैम. ओके, आई टेल यू. सॉफ्ट हार्ड स्किल जो होता है जिसमें आपको कुछ पढ़ाई करके आप कुछ सर्टिफिकेट अचीव करते हो, दैट इज कॉल्ड हार्ड स्किल. वेयर सॉफ्ट स्किल जो होता है जिसमें आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, बट दैट इनकलकेट होता है आपकी पर्सनालिटी में, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट स्किल. फॉर एग्जाम्पल, we all have done BSc, MSc, B.Ed, we got certificate, so that certification is nothing but the hard skill we have earned. Whereas some are good at leadership, some are good at communication, some are good at, say, team building activities, some are good at, say, problem solving attitude, conflict management, या तो फिर आप बोल सकते हो गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट. ये स्किल्स किसी में अच्छे होते हैं, दोज आर कॉल्ड सॉफ्ट स्किल, जिसका कोई सर्टिफिकेट हम प्रोवाइड नहीं कर सकते कि अरे वाह आप बहुत अच्छे हो टाइम मैनेजमेंट में, ये लो आपका सर्टिफिकेट, या नजमा आप बहुत अच्छे लीडर हो, ये लो आपको लीडरशिप का सर्टिफिकेट. ऐसे हम सर्टिफिकेट नहीं दे सकते. बट मनीषा मैम ने बीएड किया, नजमा ने बीएड किया, नीता ने बीएड किया, मैंने बीएड किया, तो हमें सर्टिफिकेट मिलके वो हार्ड कॉपी मिल जाती कि हाँ तुमने अचीव किया है. बट कुछ बच्चे हैं जो पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहे, उनके पास हार्ड स्किल नहीं है, फेल हो रहे, मे बी फेल हो रहे, चलो एग्जाम्पल लेते, एक्सट्रीम फेल हो रहे, नहीं दिमाग में जा रहा है, बट फुटबॉल में अच्छे हैं, स्टेज पे अच्छे हैं, कम्युनिकेशन अच्छा कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनके पास सॉफ्ट स्किल है. सो वो करिकुलम क्या होना चाहिए? कॉम्बिनेशन होना चाहिए हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल का. समझा ये सबको अभी? Yes, ma'am. Understood. So that is the meaning of hard skill and soft skill combination होना चाहिए करिकुलम में. So both academic context and in their ability to make a positive contribution while working effectively with others. This is the meaning of hard skill and soft skill. So curriculum में ये balance होना चाहिए. Then जो children and young people है, they should find their learning challenging. बोरिंग भी नहीं लगना चाहिए. Whatever curriculum is there, they should feel excited about it. They should feel motivating to do that. They should feel engaged in doing that. They should feel happy to do it. So the curriculum should encourage high aspiration and ambitions. कि नहीं यार मुझे करना है, मैं ये करूंगा तो मेरे को ये डेवलपमेंट होगा. सो वो बच्चों के अंदर अंदर से आना चाहिए. दे शुड बी एक्टिव इन देयर लर्निंग and also have opportunities to develop and demonstrate their creativity. तो बिल्कुल ही बच्चा मान लो ही इज वेरी गुड एट ड्राइंग, बट स्कूल कभी भी उसको स्कोप ही नहीं दे रहा है, ना ड्राइंग की टीचर है स्कूल में, ना ड्राइंग का पीरियड है, ना बच्चों को कहीं एग्जाम के लिए लेके जाते हैं ड्राइंग के, ना कुछ इंटर कॉलेज इंटर स्कूल कंपटीशन हो रहा है. तो बच्चे का ये जो टैलेंट है वो मर जाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो बोर होगा. क्यों? क्योंकि पढ़ाई भी करनी है बट मैं ड्राइंग इतना अच्छा करता हूँ, मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं है. तो वो प्लेटफॉर्म देने का काम कौन करता है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कब करेगा? वो तब करेगा जब उसके करिकुलम पॉलिसी में ये चीज है. अदरवाइज दे विल से नहीं हमारे यहाँ फ्रेंच नहीं है. कितने सारे स्कूल्स है जहाँ पे फ्रेंच नहीं है, बट सम पीपल, अभी फ्रेंच इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट एटलीस्ट जो बेसिक सब्जेक्ट है वो सब स्कूल्स में होने चाहिए. सो इट शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल एंड हार्ड स्किल. सो आई होप ये प्रिंसिपल सबको समझ में आ गया, दैट लर्नर का एबिलिटीज और उसका एक्साइटमेंट ध्यान में रखते हुए by considering the curriculum should be prepared. Okay with that, everybody?
Yes. या कुछ डाउट है क्या ये प्रिंसिपल में? लर्नर्स लिमिट्स एंड एक्साइटिंग इजी था? No, easy है मैम, हाँ understood. हाँ। नेक्स्ट है स्पैन ऑफ नॉलेज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पैन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पैन? सिंपल इंग्लिश में स्पैन का मीनिंग क्या होता है? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड. सो स्पैन ऑफ नॉलेज का मतलब है कि उनको उनका जो नॉलेज है वो वाइडन होने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. वही चीज रिपीटेटिव नहीं होनी चाहिए. उनके लिए न्यू एक्सपीरियंस होना चाहिए. नॉलेज उनको हमेशा बढ़ती, नहीं तो क्या हो जाएगा, बोर हो जाएंगे. अरे यार ये पहले भी पढ़ा है, अभी भी पढ़ रहे हैं, अभी क्या है ये 2 साल से पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं लगना चाहिए उनको. सो व्हेन द करिकुलम वी आर डिजाइनिंग, it should give some new value added knowledge to the child's, whatever we can say, child's life or child's learning process. So their learning should be planned and organized to so that they will learn and develop through variety of contexts within both the classroom and the other aspect of school life. So knowledge उनका जो है वो थोड़ा broaden होना चाहिए. So उसको बोलते हैं breadth of learning. So what is the breadth of learning? Breadth of learning refers to the full span of knowledge of a subject. और depth क्या है? What is the depth? चौड़ाई Learning और in मैम, लंबाई. deep. deepness of the knowledge. Yes, depth मतलब how deeply you are taking. There is a difference between depth and the breadth. Breadth वो बोल रहे हैं कि full span of knowledge कितना widen वो है. Whereas depth क्या बोल रहा है? Depth of learning refers to extent to which the specific topics are focused upon and amplified and explored. So that is called depth. For example, share market है. मैथ्स के टीचर है क्या कोई यहाँ पे? Is there someone who teaches maths? अच्छा, ठीक है, दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं. कुछ ज्योग्राफी का वगैरह एग्जाम्पल तुम लोग दे सकते हो तो दो. उसमें भी काफी ब्रेड्थ और डेप्थ है. हिस्ट्री है जिसमें ब्रेड्थ और डेप्थ है. साइंस है जिसमें ब्रेड्थ एंड डेप्थ है. यस कम ऑन. मैं मैथ्स ज्यादा देती हूँ क्योंकि बीइंग अ मैथ्स टीचर मेरे दिमाग में पहले वही आता है. बट देयर आर अदर सब्जेक्ट टू जहाँ पे सब्जेक्ट का ब्रेड्थ और डेप्थ इज कंसिडर्ड. So can you people give any example of your subject? Breadth or depth का meaning समझो. That is what I'm trying to tell you. इन्होंने टेबल फॉर्मेट में भी दिया हुआ है breadth and depth का meaning. What is the meaning of depth and what is the meaning of breadth? They have given it. Can you all see on page number 30? So breadth of a curriculum का definition they are giving the range of a subject taught across the whole curriculum and the span of knowledge within each subject. And depth बोल रहे हैं how deeply the specific topics should be taught. And they have given some example in the textbook. But textbook से ज्यादा मैं चाहती थी कि तुम लोग अपनी लाइफ डे टू डे लाइफ में जो सब्जेक्ट पढ़ाते हो उसका एग्जाम्पल दो. But anyway, we'll read this textbook example. A broad curriculum focuses on all curriculum subjects. For example, art, PE, PSHE. PSHE का फुल फॉर्म क्या है? Is it related to safety or what? अब देखना पड़ेगा नेट में. I think it is related to safety, health, and something like that. PE physical education है और PSSC है. PSHE is personal, social, health and economic education. PSHE. And PE तो हमने सबको पता ही है. PT जो रहता है PE फिजिकल एजुकेशन. Physical education. हाँ, इसमें सब है. PSHE में सोशल भी है, हेल्थ भी है. So English and not just core subjects, English, maths and science. That is a breadth of the curriculum. So curriculum में ये चीजें भी होनी चाहिए along with English, maths and science. Depth में क्या बोल रहे हैं? How deeply a pupil understands the key concept. Example given, can they explain the concept in their own words or each someone else? That is called the depth.
कितना समझा वो बच्चे को, सब्जेक्ट कितना बड़ा है उससे ज्यादा बच्चे को कितना समझा है। दूसरा है, डिस्टिंग्विश में भी आ सकता है, अ ग्लोबल हिस्ट्री करिकुलम दैट स्पैन्स अ वाइड रेंज ऑफ टाइम पीरियड्स एंड प्लेसेस। सो ब्रेड का मीनिंग दूसरा ये भी हो सकता है कि कितने साल वो बच्चा वो चीज पढ़ रहा है। जैसे हम लोग बीएड अभी 2 साल का हो गया, हमारे टाइम पे 1 साल का था, तो मतलब उसका ब्रेड बढ़ गया। लेकिन 2 साल के करने के बावजूद भी आज के जो यंग जनरेशन के टीचर्स है उनके मुकाबले हम लोग 1 साल किया हुआ हमारा ज्यादा क्वालिटेटिव था, ऐसे मुझे लगता है। वी वर ऑन अवर टोज। 1 साल में हम लोग इतना काम किए हैं बीएड में। मेरा 2003 का बैच है बीएड। सो अभी का करिकुलम 2 साल में स्प्रेड हो गया, ब्रेड उसका 2 साल का हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ब्रेड्थ एंड डेप्थ? Yes, ma'am. Yeah, and the RE curriculum that covers many religion educations beyond Christianity, Islam and Judaism. So अब now वो तो अलग बात है कि हर एक स्कूल में अलग अलग RE सिखाते हैं। कोई पर्टिकुलर रिलीजन डोमिनेंट स्कूल भी होते हैं कि वहां पे वही रिलीजन की ज्यादा पढ़ाई होती है, ऐसे भी होते हैं स्कूल्स, नो डाउट। So how well a pupil understand the underlying links between different subject and ideas. So anyway, depth में they are telling वही चीज। मेरे को अपना डे टू डे लाइफ का कुछ तो एग्जाम्पल चाहिए था जिससे समझ में आ जाए ब्रेड्थ कितना फैला हुआ है और डेप्थ क्या क्या उसमें दिया हुआ है, कितना वो बच्चे को समझ रहा है। दैट इज लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ करिकुलम का मीनिंग है। कुछ एग्जाम्पल दिमाग में आ रहा है क्या तुम लोग की? मान लो फूड चेन, ठीक है। फूड चेन अगर आप देखेंगे तो 5th स्टैंडर्ड से बच्चों को फूड चेन है एनवायरमेंटल साइंस में, एम आई राइट? और वही फूड चेन 6th में है, 7th में है साइंस में, बायोलॉजी में। तो ब्रेड्थ ऑफ दैट सब्जेक्ट इज स्प्रेड फॉर 2-3 years। डेप्थ में क्या है कि शुरू में 5th स्टैंडर्ड में उनको छोटा सा फूड चेन बताया गया है कि कैसे ग्रास अपना बनता है बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, कैसे फोटोसिंथेसिस होता है। एम आई राइट टीचर्स? इज इट मेकिंग सेंस? Because I have taken bio का example instead of maths. Always I give maths example, no? Yes, yes. Yeah, तो ये So maybe, हाँ, बोलो बोलो। maybe in grade 4 or 5, they might just say that grass is eaten by the grasshopper and the grasshopper is eaten by the bird. Correct. So there is just there is just One a cycle. producer. Yeah. So just a consumer and only two, matlab just 1 to 3 this are there. Yes. And as you become as you go to higher grades, though the topic remains the same, the complexity level increases. Increases. It becomes a Similarly, full web, हाँ. yes, perfect. Similarly, अब हम लोग ये सिखाते हैं ना वाटर साइकिल, कि पानी बॉईल होता है, वापस उसका बाफ बनता है, वेपर बनता है, वेपर एटमॉस्फेयर में जाता है, फिर वापस उसका बारिश बनता है। लेकिन Even जैसे in maths, we can say na fraction chapter. Or lower standard, we yes, have initial fraction, and then higher standard, we have rational numbers. एग्जैक्टली। So, नाउ ये सारे सब्जेक्ट शुरू तो हो रहे हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से। मैथ्स फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ रहा है बच्चा, एनवायरमेंटल साइंस फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ रहा है बच्चा, 10वीं तक पढ़ रहा है। तो ब्रेड कितना है? 10 साल का। बट हर एक टाइम उसका डिफिकल्टी लेवल और नॉलेज जो है वो बढ़ता जाता है। दैट इज कॉल्ड डेप्थ। नाउ आई थिंक इट्स क्लियर। अगर आप वही जो अभी मैडम ने बताया ग्रास हॉपर और बर्ड, तो यही अगर हम लोग 10वीं तक करते रहेंगे तो बच्चा बोर नहीं हो जाएगा? सो जैसे अभी मैं बता रही थी वाटर साइकिल का, सो वाटर साइकिल क्या पूरा 4 साल वो यही पढ़ेगा कि बारिश का बाप बनता है, बाप का ये होता है, वापस बारिश बनता है? नो, देन वी हैव दिस थिंग, सी लैंड ब्रीज, ऑल दैट थिंग्स आर देयर, नो, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज। फिर स्लोली कंसेप्ट है उनको अलग, कंडेंसेशन क्या है, देन व्हाट इज द डव मॉर्निंग में जो होता है। सो इसी के कंसेप्ट है।
वेपराइजेशन क्या है, व्हाट इज दैट 4 डिग्री सेल्सियस तक आइस फॉर्मेशन होता है, Moisture and मॉइस्चर, हाँ, what is Anomalous behavior. anomalous behavior of water, कि it behaves so strange, so weird. So ये सब क्या है, डेप्थ है. Make sense? I think we spent lots of time on breadth and depth. Yes. Okay, chalo. Next is structure like building blocks. So in short, what is the conclusion? What is the conclusion? Somebody come to the conclusion. We explained, but what is the conclusion of that point? Come on, somebody conclude the point. The curriculum should be such that the breadth and depth of a subject should be considered so that the child will learn new things every time. Fine? And then give examples. Explain the meaning of Yes. breadth. Explain the meaning of depth. Clear? कैसे लिखोगे Okay. points? चलो. Yes. Structure like building blocks. Children and you people means teachers. Children and you people should experience continuous progression in their learning from 3 to 18 years. क्योंकि 18 years बच्चा 12th standard तक पहुंच जाता है. 3 years में बच्चा नर्सरी में प्ले ग्रुप नहीं, नर्सरी में आ जाता है 3 years में. So मतलब schooling life उसका 3 to 18. Each stage should build upon earlier knowledge and achievements. So the children and young people should be able to progress at a rate which meets their individual needs and aptitude. So अभी जैसे 3 साल की बच्ची है या बच्चा है, तो उसको छोटे छोटे जॉनी सिखा रहे हैं, उसको गुड हैबिट्स बैड हैबिट्स सिखा रहे हैं. So ये उसके करिकुलम का पार्ट है. क्लियरिंग द हर्डल है, ये उसके स्पोर्ट्स का पार्ट है. उसके स्पोर्ट्स का पार्ट डायरेक्टली फुटबॉल और क्रिकेट नहीं है 3 साल के बच्चों का. सो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, कि एक स्ट्रक्चर होना चाहिए करिकुलम और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का, सो दैट इट शुड नॉट बी लाइक 3 to 18 years में अप्रोप्रिएट होना चाहिए और ना कि कुछ अलग होना चाहिए. देन एवरी डिटेल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस वो करिकुलम में होना चाहिए, हैपेजाइड में नहीं होना चाहिए. सो दिस इज अ 5th प्रिंसिपल दे आर टेलिंग अस, दैट एवरी डिटेल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस. अभी तक पहले 4 प्रिंसिपल क्या क्या पढ़े हम लोगों ने? कम ऑन. पहला प्रिंसिपल पढ़ा कि जो ट्रायंगुलर पिरामिड दिया हुआ था, those were the Ma'am, points. challenges and enjoyment. Yes, Challenges and enjoyment में interest of the learner. correct. Then span of knowledge was another principle, right? Length and breadth and depth was another principle. Then building blocks, वो एक प्रिंसिपल पढ़ा हम लोगों ने. समझ में आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम? Yes, yes. चलो, नेक्स्ट इज हर एक लर्निंग एक्सपीरियंस का डिटेल चीज कंसिडर करना चाहिए करिकुलम में. सो व्हाट आर दे ट्राइंग टू से? There should be opportunities for children and young people to develop their full capacity for different types of thinking and learning, exploring and achieving more advanced level of understanding. So again, the same thing they are trying to tell कि thinking और learning और थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, exploring होना चाहिए, achieving a more advanced level of understanding होना चाहिए, or otherwise children will get bored. So in fact, same point they are trying to explain us from different we can say sentence formation. If you see from the beginning till now, same thing है. नया सिखाओ, challenges को अनुसार सिखाओ, ability के हिसाब से सिखाओ, उनको young और exciting लगे, कुछ energetic लगे, कुछ नया लगे, ऐसे सिखाओ. Same points है, अलग अलग way में बता रहे. Even depth और breadth में भी तो वही तो सीखा कि हमेशा आप अलग सिखाओ, spread जितना हो रहा है उसमें नया नया लाओ, वही चीज है. So practitioner should support learners to, practitioner मतलब हम teacher. So teachers should support learners to engage with description of learning in increasing depth and sophistications over a period of time. So this should help learners to apply the description of learning in increasingly challenging context and allow for diversion, reinforcement and reflection as their
understanding and application of key learning develops and becomes more sophisticated over time, provoking deep thinking, discussion and inquiry. So in short वो क्या बोल रहे हैं कि जो भी हम बच्चों को पढ़ाएंगे, जो भी करिकुलम में होगा, वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चे का नॉलेज गेन होना चाहिए धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. बच्चा नया कुछ तो सीखना चाहिए. नर्सरी में था उसको 2 पोएम आती थी, जूनियर केजी में जाएगा तो अभी उसको 5 पोएम आएगी, थोड़ा उसको अभी 1 2 3 4 भी आएगा, सीनियर केजी में जाएगा तो और थोड़ा उसका नॉलेज बढ़ जाएगा. सो ऐसे करिकुलम होना चाहिए कि उसको हमेशा नया नया डिटेल एस्पेक्ट और नया लर्निंग एक्सपीरियंस मिले, डाइवर्शन हो, कुछ नया कुछ हो, रीएनफोर्समेंट हो. तो लास्ट टाइम उन लोगों को मान लो आप भाजी वाले के सब्जी मंडी फील्ड ट्रिप लेके गए थे, मान लो जूनियर केजी को, तो सीनियर केजी को आपको कहीं और जगह लेके जाना पड़ेगा, सो दैट देयर शुड बी सम वैल्यू एडेड नॉलेज. दूसरा पॉइंट जो हमारे ट्रायंगुलर पीरियड जो पिरामिड है उसमें है कोहेरेंस. देखो ऊपर से तीसरा पॉइंट है कोहेरेंस, दिख रहा है सबको? डेप्थ और ब्रेड्थ हम लोगों ने देखा. Yes, ma'am. हाँ. सो चैलेंज एंड coherent. एंजॉय चैलेंज एंड एंजॉयमेंट में उन लोगों ने ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए थे. अभी वो लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कोहेरेंस. चैलेंज एंड एंजॉयमेंट में उन्होंने डेप्थ और ब्रेड्थ भी इंक्लूड किए थे. अभी कोहेरेंस हम लोग पढ़ रहे हैं. अभी कोहेरेंस में क्या है? हार्मोनाइज द टोटल एक्सपीरियंस. सो जो भी बच्चा सीखेगा उसको अभी क्या करना है, एक हार्मोनी में लाना है. हार्मोनी में लाना मतलब क्या? व्हाट इज हार्मोनी में लाना? हाँ, सिंक्रोनाइज करना, सिंक्रोनाइज करना, कंबाइन करना, एक वे में लाना, कंक्लूजन पे आना. सो ऐसा नहीं कि वो कुछ भी पढ़ रहा है लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे टुगेदर कैसे लाया जाए, सबको एक सिंक्रोनाइज कैसे किया जाए, एक साथ कैसे बांधा जाए. सो हार्मोनाइज द टोटल एक्सपीरियंस. कोहेरेंस, कोहेरेंस का मीनिंग ही क्या है? व्हाट इज कोहेरेंस? नॉर्मल इंग्लिश है. व्हाट इज कोहेरेंस? कम ऑन, नॉर्मल इंग्लिश तो हम लोग को आता है सबको. व्हाट इज कोहेरेंस? यस, कोहेरेंस का मीनिंग ही क्या Ma'am, है? proper इट्स, sequence, सॉरी, sequence पे लेके आना सब. हाँ, Proper सिंक्रोनाइज की. sequence में यस, प्रॉपर सीक्वेंस को, सिंक्रोनाइजेशन को तो कोहेरेंस बोलते हैं ना हम लोग. coordinate करना properly. प्रॉपर कोऑर्डिनेट करना, क्लियरली सब एक साथ बांध के रखना, दैट इज कोहेरेंट. सो कोहेरेंस का अंदर ही हार्मोनाइज होता है. सो कोहेरेंस इज अम्ब्रेला टर्म, बिगर टर्म. तो उसमें ही पहला प्रिंसिपल उन्होंने दिया है, हार्मोनाइज. सो जो भी एक्सपीरियंस है उसको एक साथ बांधना है. यस यस, ब्रिंगिंग टुगेदर. So coherence is concerned with the total experience the students gets from the formal and informal curriculum and incorporates concept including breadth, balance, relevance, engagement and individual growth. So the curriculum is in harmony. So बच्चे को कितना समझा है, बच्चे को क्या क्या समझा है, क्या क्या किस में आएगा, ब्रेड्थ में आएगा. कितना समझा है किस में आएगा, डेप्थ में आएगा. समझ में आ रहा है? तो लोग को क्या क्या और कितना में फर्क क्या है, ब्रेड्थ और डेप्थ में. बैलेंस कितना कर पा रहा है बच्चा, ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ रहा है बाकी सब में सब्जेक्ट में फेल हो रहा है, या सिर्फ पीटी कर रहा है, मतलब फिजिकल एजुकेशन ही कर रहा है, बाकी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है, या खाली वो स्टेज पे ही अच्छा कर रहा है लेकिन बाकी सब्जेक्ट में फेल हो रहा है. ऐसे नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी अ बैलेंस. उसको सब चीज थोड़ा 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 आना चाहिए, ऑल सब्जेक्ट्स. रिलीवेंस होना चाहिए. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इट इज इरिलीवेंट, बच्चा इज नॉट इंटरेस्टेड एंड वी आर जस्ट फोर्सिंग हिम, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. बच्चे का एंगेजमेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल ग्रोथ होना चाहिए. इस सबको हमें हार्मोनी में लाना है व्हेन वी आर डिजाइनिंग अ करिकुलम. सो बच्चे का एज मान लो 10 साल का है तो 10 साल के हिसाब से, इसीलिए तो करिकुलम डेवलपमेंट में सारे दिग्गज लोग एक साथ कमिटी बन के बैठते हैं, सब रहते हैं उसमें, साइकोलॉजिस्ट हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है. सो दिस इज द रीजन कि सबका सोच लेके एक हार्मनी में करिकुलम बनाना चाहिए. Children and young people's learning activities should combine to form coherent experience. There should be clear links between different aspects of learning. Such links should be discussed with the children and young people in order
to bring different strands of learning together. So curriculum coherence can be viewed from national, school and classroom level. मैंने अभी जो बताया कि करिकुलम डेवलप करते समय सब लोग उसमें रहते हैं। क्यों? क्योंकि नेशनल लेवल पे भी उसके बारे में सोचना है, स्टेट लेवल में भी सोचना है। हम लोगों ने देखा है डिफरेंट बोर्ड्स में, सो वो लोग भी सोचते हैं। गांव की स्कूल है, क्लासरूम लेवल है, अरे मिनी लेवल, माइक्रो लेवल, मैक्रो लेवल, सब लेवल पे करिकुलम को सोचना पड़ता है। तो क्योंकि हमें पता है कि जो 5th स्टैंडर्ड आज मुंबई में हम लोग पढ़ा रहे हैं, वही 5th स्टैंडर्ड गांव में भी पढ़ा है। एम आई राइट? कि ऐसा है क्या कि वो रूरल है तो उनके बुक्स अलग है, और हम इधर मुंबई में पढ़ रहे तो हमारे बुक्स अलग है। हाँ, बोर्ड्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिफरेंट बोर्ड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट, मान लो स्टेट बोर्ड है तो सबके सेम है। तो करिकुलम डेवलप करते वक्त कोहरेंस होना चाहिए, सबको लेके चलना है हमें, ना कि कोई एक पर्टिकुलर बच्चे ध्यान में रख के करिकुलम बनाना है। सो वंस अ करिकुलम हैज बीन एग्रीड एट स्कूल एंड नेशनल लेवल, टीचर्स नीड टू इम्प्लीमेंट इट इन द क्लासरूम। टीचर को कोई चॉइस नहीं बचती है, क्योंकि करिकुलम बनाते वक्त इवन टीचर्स आर कंसिडर, प्रिंसिपल्स आर कंसिडर, then different educationists are considered, different philosophy and educational philosophical, educational psychology जिन्होंने पढ़ा है, all these are considered. So that's why एक बार वो बन गया, टीचर को चॉइस नहीं, टीचर को पढ़ाना ही है at any cost. हम लोग नहीं बोल सकते यार ये बोरिंग टॉपिक है, मुझे नहीं पढ़ाना है। We don't have choice. Then how do we ensure curriculum coherence? This is important for us. The curriculum coherence is to align and reinforce the relationship between the curriculum, endorsed textbooks, pedagogy, and assessment. One way is to provide curriculum coherence in curriculum design by using the same learning objectives which are in the national curriculum frameworks, endorsed textbooks, scheme of work, and formative summative assessment and assessment guidance, non-assess subjects. So what they are trying to say is पहचानने का कैसे, कि सब कुछ अच्छा जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये कैसे पहचानने का। तो ये पहचानने के लिए वो क्या बोल रहे हैं, मीटिंग विल एंड, वी विल अगेन ज्वाइन, वी विल ट्राई टू फिनिश एटलीस्ट प्रिंसिपल्स जितना होगा उतना। सो वो क्या बोल रहे हैं कि टेक्स्ट बुक का, स्कीम ऑफ वर्क का, फॉर असेसमेंट का, इवैल्यूएशन का, जो ऑब्जेक्टिव और गोल थे करिकुलम के नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, ये सारे अचीव हुए कि नहीं थ्रू असेसमेंट, ये सबका मिला के वी कैन इवैल्यूएट कि भाई जो भी करिकुलम था वो कोहेरेंस हुआ कि नहीं हुआ, ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुए कि नहीं हुए। दिस इज द मीनिंग ऑफ हाउ टू ensure curriculum coherence. I hope till now everybody is clear with this thing, principle of coherence, है ना? कुछ Yes, तो ma'am. yeah, we can write in our own words, I think थोड़ा बहुत तो लिख लेंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल रिलीवेंस पढ़ेंगे। अभी मीटिंग एंड होगी, वापस यही लिंक पे ज्वाइन करना, फिर वी विल लर्न अबाउट द नेक्स्ट